नमस्कार। एक वीडियो है जिसमें जो कैम्पबेल वाला केस है, अमित विश्वास वाला केस, जिसको पुलिस स्टेशन में लेके आदित्य नारायण ने मारा था, वो केस का हियरिंग चल रहा है। उसको ध्यान से देखिए, फिर मैं आपको बताता हूँ कि जज ने क्या कहा। Yes, Mr. বিশ্বাস, what is your এটা কে আছেন? সুমিত, মিস্টার সুমিত কর্মকার is not. So why is your medical certificate? স্যার মেডিকেল সার্টিফিকেট আমি পাঠিয়েছি স্যার, ওখানে মেল করেছিলাম, এখান থেকে সার্টিফিকেট, বাকি রেসিডেন্ট সার্টিফিকেট, মেডিকেল সার্টিফিকেট সারা আছে। আর কাকে পাঠিয়েছিলেন? স্যার রেজিস্ট্রার এখান থেকে আমি মেল করেছিলাম স্যার। এই রেজিস্ট্রারকে মেল করেছিল বলছেন, দেখো ইন পার্সন করছে। আচ্ছা, এটা রাকেশ কুমার না কে ছিল না? কি পেপারগুলো আসবে ওটা বলুন তো। আচ্ছা আচ্ছা, এগুলো দিবে না। The learned counsel for the state is present. So what is আপনার কি প্রার্থনা, কি আপনি কি চাইছেন? স্যার আমি এই চাই যে স্যার আমার সাথে কোনো ন্যায় হোক স্যার, কারণ কি আমার সাথে যা মানে ঘটনা হয়েছে স্যার, আমার খুব দুঃখ তো মানে পূরণ স্যার। আমার ঘটনার জন্য স্যার আমার পরিবারের পুরো ক্ষতি হয়েছে স্যার। কারণ কি স্যার, আমাকে পুরো প্ল্যান করে এই এসএচও আদিত্য নারায়ণ স্যার এখান থেকে আমাকে ঘর থেকে মিথ্যে কথা বলে স্যার নিয়ে যায় স্যার। 2 দিন রেখেছে আমাকে 2 দিন পুরো সম্পূর্ণ রাত 8টা থেকে একদম সকাল 3টে পর্যন্ত আমাকে পুরো পিটাই করেছে স্যার। আপনাকে কি দিয়ে মেরেছে? কি দিয়ে মেরেছে? চর্চা করবে না স্যার, বেতের লাঠি দিয়ে মেরেছে। আর স্যার মানে লাঠি চড় স্যার সব যে যেরকম পেয়েছে সেরকম মেরেছে স্যার। আমাকে ফুটবলের মতো স্যার খেলেছে আমাকে থানার মধ্যে স্যার। আর এসে তো স্যার মদ মানে সারাপ মানে মদ খেয়েছিল স্যার। হ্যাঁ, এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আপনাকে যে মারধর করেছে তার জন্য তো ডকুমেন্ট চাই। ডকুমেন্ট গুলো আমি তো স্যার সিসিটিভি ফুটেজের জন্য স্যার একটা মানে দিয়েছিলাম স্যার। তো আমাকে এখনো সিসিটিভি ফুটেজের ওই ডেটের এখনো আমাকে কোনো দেয়নি স্যার। আমি তো ওটা স্যার মানে দরখাস্ত করেছিলাম স্যার। আর আমাকে নিয়ে যাওয়ার সময় স্যার কোনো না, তার আগে কোনো আমাকে না নোটিশ কোনো জারি করেনি স্যার। আমাকে তো স্যার একটা নোটিশ দিতে হবে না স্যার, যে আপনার এইখানে এরকম হয়েছে, কি আপনি ইনলিগেল কি লিগেল স্যার। আমি তো আমার সারা ডকুমেন্টস তো স্যার আমাকে ভেরিফাই আমি করেছি স্যার, তবুও স্যার এরা তো শুনিনি স্যার। আমাকে নিয়ে যায় জোর জবরদস্ত করে স্যার, পুরো ফ্যামিলি টর্চার, ফির গালি গালাজ স্যার। এই কানুন বলে তো একটা জিনিস আছে না স্যার। Sir, Leonard will be requested to take pass over in this matter. He is coming. Mr. Sumit Karnataka. Oh. স্যার পুলিশ কনস্টেবল স্যার লেডিসের সামনে স্যার আমার পুরো কাপড় খুলে দিয়ে স্যার, আমি মুসলিম না হিন্দু স্যার, এটা তো কোনো মেডিকেলের কোনো একটা আছে না স্যার, যে আমি মুসলিম কি না এটা মেডিকেলে লিখে থেকে করার দরকার ছিল না স্যার। ওরা নিজেরা স্যার সবকিছু করলে স্যার ঠিক আছে স্যার। আমি স্যার ইনলিগাল, ঠিক আছে, আমাকে তো একটু টাইম দেবে না স্যার। আমি যে আপনার মানে সার্টিফিকেট গুলো পেশ করার জন্য স্যার কোনো কিছু সার্টিফিকেট নিয়ে গেছি স্যার, আমাকে সার্টিফিকেট দেখিয়েনি, আমার মোবাইল কেড়ে নিয়েছে, আমার ঘরের সাথে কোনো সাক্ষাৎ করতে দেয়নি, রাত ভরে স্যার ওইভাবে আমাকে পিটিয়েছে স্যার, খালি মানে কাপড়টা খুলে দিয়েছে। Just a minute. Key, whether all the service has been taking place. না সেটা ঠিক আছে, সার্ভিস হচ্ছে। Okay, now the serious allegation against the police officers. না এটা আমি এটা সিরিয়াসলি নিয়েছি। ওর কথা কেউ শুনছে না। ইভেন যে লয়ারকে দেওয়া হয়েছে লিগ্যাল সার্ভিস অথরিটি, তিনি বলছেন যে আমি তোমার কেস করব না, মিথ্যে কথা বলেছো। হোয়াট ইজ হিজ নেম? কি নাম? উকিল বাবুর নাম কি? আনজার আলী স্যার। আমাকে মানে বলেছে যে আপনার কেসে কোনো নেই, আপনি ফলস এলিগেশন লাগাচ্ছেন, আমি আপনার কেস নেব না। উকিল বাবু যদি এরকম বলে স্যার, তাহলে আমি কি করবো স্যার? আপনি বলেন স্যার। জাস্ট
আপনি যখন আপনাকে পার্সোনালি এনগেজ করতে পারেন বলতে পারেন, কিন্তু যখন মেম্বার সেক্রেটারি আপনাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করছেন আপনি বলতে পারেন না আমি নেবো না কেস, তুমি মিথ্যে কথা বলছো। He should be removed from panel. Those things should be answered by them. I have called him Ansar Ali or whatever meet. Why is Mr. Amjad Ali? It is very serious issue. Please, Mr. Dwivedi, just definitely. try to understand. You are the Indian citizen. If anybody, just a minute, if anybody and say that you are not in Indian, it is a very much insult to my conscience. আমি ভারতীয়, আমাকে এইরকম বলছে, এটা গালাগালির থেকেও সমান, তাই তো মিস্টার হালদার? হ্যাঁ, আর সেখানে ওকে জোর করে অ্যালিগেশনটা যে জোর করে ওকে মারধর করা হচ্ছে, ওকে বলা হচ্ছে তুমি স্বীকার করো তুমি বাংলাদেশ মুসলিম। আমি কি আস্তে আস্তে আমি আপনাকে আপনাকে কেউ কিভাবে বলেনি, এইটা আমি আমার সেন্টিমেন্টে লাগছে। একজন ভারতীয়কে যদি কেউ বলে যে তুমি বাংলাদেশি হিসেবে স্বীকার করার, এখানে ওর সমস্ত সার্টিফিকেট দেখাচ্ছে, এবং তা না ওকে অত্যাচার করেছে, এটা বলতেই পারে, এটা ভীষণভাবে এটা অপমানিত হতেই পারে। হ্যাঁ, সেক্ষেত্রে এটাকে আমি ওইভাবে ছাড়তে পারি না। হ্যাঁ, এটা আর যিনি এই মেম্বার সেক্রেটারি যাকে অ্যাপয়েন্টমেন্ট করলেন তিনি তাকে রিফিউজ করতে পারেন না, তুমি মিথ্যে কথা বলেছো আমি তোমার কেস লড়বো না। এটা আপনি আপনার পার্সোনাল হিসেবে, আপনি যখন পার্সোনালি কেউ আপনার চেম্বারে আসবে আপনি বলতে পারেন, কিন্তু আমরা আপনাকে এনগেজ করেছি, আপনি বলতে পারেন না। আমার তো মনে হয় তাই, আমি তাই বুঝলাম। অমিত বাবু বলছেন যে উনি এরকম বলেছেন, আমি সেটা রেকর্ডও করেছি, ওনাকে আমি ডেকেও ছিলাম কিন্তু পেলাম না। যাই হোক, আনফর্চুনেটলি সুমিত বাবু আসতে পারছেন না। আপনার কথা আমি শুনছি, চেষ্টা করছি। আমাদের তো পিরিয়ডটা তো খুব লিমিটেড, সুতরাং ঠিক আছে, আমি নেক্সট কেস করছি। সুমিত বাবু আসুক, আবার আপনার কেস নেবো নেক্সট। পাসওয়ার্ড করে রাখুন, ওই একটা ওদের ম্যাটার আছে, দেখি কখন হবে ওটা। এই नमस्कार। देखो, जज ने क्या कहा कि ये जो जज है इसका नाम है अपूर्वा सिन्हा रॉय, ठीक है। ये जो जज है पहले वेस्ट बंगाल जुडिशियल सर्विसेज में था, उससे अच्छा जज है करके प्रमोशन होकर हाई कोर्ट का जज बनाया, ठीक है। और जो जज है ये पिछला हियरिंग में क्या बोला था कि तुम जो इसका लास्ट सर्किट में जब हियरिंग हुआ था तो वो जज ने भी कहा कि तुम एक काम करो, मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह प्रोड्यूस करो। तो ये बेंच पे क्या किया, अमित बिस्वास ने मेडिकल सर्टिफिकेट वगैरह कैम्बेल वे में है तो रजिस्ट्रार को मेल करके भेजा है। अभी क्या हुआ, जज ने अमित विश्वास को बोला तुमने क्या चाहता करके, अब जो वीडियो देख रहे हो इसमें बोला तुम क्या चाहता, तो ये बोला कि सर मेरे को 8 से 2 बजे तक मुझे पुलिस स्टेशन में लेके जाके बिना नोटिस का आदित्य नारायण और 7-8 पुलिस वाला मिलकर मुझे बहुत मारा, और वो अल्कोहल पिया हुआ था, और वो सब सीसीटीवी फुटेज में भी रिकॉर्ड हुआ। और इसका चक्कर में मैंने RTI भी डाला कि सीसीटीवी फुटेज मुझे दिया जाए, पुलिस ने मुझे सीसीटीवी फुटेज भी नहीं दिया और मुझे बहुत मारा। और मुझे जब अरेस्ट किया 40 होने का पहले से जो नोटिस देना वो नोटिस भी नहीं दिया, जो अनिश कुमार गाइडलाइंस के हिसाब से देना है। और सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है अनिश कुमार, वो मैं अलग से बताऊंगा। और वो टाइम में जज बोला कि ये जो वकील है, सरकारी वकील जो एडवोकेट सुमित कर्मकार, वो का है, तो सुमित कर्मकार मिसिंग है, वो यहाँ में घूमता है, आके अपीयर नहीं होता, ठीक है। वो सोचता है क्योंकि इस तरह केसेस में क्या होता है कि दोनों वकील मिलकर सेटल करवा लेता है, या बार बार डेट फिक्स करेगा, ऑपोजिट पार्टी आएगा नहीं तो केस बोले, जज बोलेगा तो आया ही नहीं, डिसमिस फॉर डिफॉल्ट कर देगा, डिसमिस कर देगा। तो ये अमित विश्वास चालू आदमी, वो बराबर उठ के बैठ जाता है कोर्ट में, मतलब BC मोड में होता है, ऑनलाइन में। तो उसने बोला कि सर रात को मेरा कपड़ा खोल दिया, कपड़ा खोल के मेरे को कुत्ता बिल्ली जैसा वो लोग पुलिस वाला ने मिलकर मारा, ठीक है। और कपड़ा खोल के ये देखता है कि मैं मुस्लिम हूँ कि हिंदू हूँ, ये सब चेक करता है, मतलब प्राइवेट पार्ट को चेक करता है। और मैं जो सर्टिफिकेट वगैरह दिया, मेरा कोई सर्टिफिकेट भी ये लोग वेरीफाई नहीं किया। तो जज ने क्या बोला, ये तो एलिगेशन बहुत ही सीरियस है, और यही एलिगेशन को CGM कोर्ट में किया, कंप्लेन को CGM कोर्ट ने डिसमिस कर दिया, मैं बता रहा हूँ। फिर उसको अपील करा सेशन कोर्ट में डिसमिस कर दिया, और इसीलिए क्या किया, इसने हाई कोर्ट में अपील करा। देखो हाई कोर्ट मान गया। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में क्या कि मेजोरिटी जज बहुत अच्छा होता है, ठीक है। लोअर कोर्ट में क्या है, जज लोग इतना दिमाग उमाग होता नहीं, मतलब कम होता है, मतलब छोटा मोटा जज होता है। तो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या है, जज लोग बहुत स्मार्ट होता है,
और ये जो क्या करा, इसने स्टेट लीगल सर्विस जो जज है, पिछला जज जो है हाई कोर्ट का जज, इसने स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी को डायरेक्शन दिया था कि एक वकील अपॉइंट करके दो, क्योंकि ये अपना केस आर्गू नहीं कर सकता। तो एडवोकेट अंजर अली को, एक पैनल एडवोकेट है जिसको अपॉइंट किया था, लेकिन अंजर अली उसको क्या बोला कि ये केस में कोई मेरिट नहीं है, बेकार केस है, तुमको करने का ज़रूरत नहीं है। तो अमित क्या किया, ये सब चीज़ जज को बताया कि सर ये जो वकील आपने अपॉइंट करके दिया है हाई कोर्ट ने, ये सब बोलता है, ठीक है। आप कभी भी क्या है कि जो गरीब है उसके लिए फ्री में वकील मिलता है, जिसका गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, और ये जो फ्री में वकील अंडमान निकोबार में मना करता है। देखो मना नहीं कर सकता, आप एप्लीकेशन देना, मना करेगा तो वो लेटर लेके जज को देना कि सर वो मना कर दिया था, तब क्या होता है आपका केस और भी स्ट्रॉन्ग बन जाता है। अभी क्या हुआ, वो जज क्या बोला, ये जो एडवोकेट है अंजर अली, इसको रिमूव कर देना चाहिए पैनल से, क्योंकि ये बेकार इसको डायरेक्शन देने के बाद भी अपीयर नहीं होता करके, और उल्टा पुल्टा आदमी लोग को बोलता है करके, ठीक है। ये सब क्या है कि वकील का लाइसेंस भी कैंसिल कर सकता, अगर वो चाहे हम वो भी करवा सकते। और मेंबर सेक्रेटरी जब अपॉइंट कर अगर किसी को करता है तो कभी वो ना नहीं बोल सकता, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ, वकील क्या हुआ, सुमित कर्माकर ढूंढ के सुमित कर्माकर आया नहीं, तो जज क्या बोला, आप लिटिल पास ओवर दो, पास ओवर के बाद मैं बताता हूँ। अब ये पास ओवर का बाद का जो वीडियो है ये आप देख लो, इसके बाद मैं बताऊँगा कि ये पास ओवर के बाद क्या सुमित कर्माकर बोला और जज ने क्या बोला। धन्यवाद। হ্যাঁ, 500 ম্যানটা কি হয়েছে? হাউ ইজ মিস্টার সুমিত কর্মকার? হোয়াট হ্যাপেন্ড? এটা হ্যাঁ, what happened? It's a serious allegation against this. All are baseless allegations, fabricated. No. We decided. No, what is the problem? Amit Kumar Vishwas, he has stated that he has been mercilessly beaten up. Supporting document. Yes, he has submitted documents. I did not get it. এই আচ্ছা সুমিত বাবু, এই যে সরকারি উকিল বাবু, আপনি যে ডকুমেন্টস গুলো দিয়েছেন না, উনি ওনার কপিটা ওনাকে দেয়া হয়নি, উনি এইটা না দেখে কিছু বলতে পারছেন না, উনি আজকে দেখবেন, সময় চাইছেন, ঠিক আছে? হ্যাঁ ঠিক আছে। এই একটু দেখে নিন না, উনি দেখে নেবেন, কপি দেওয়ার দরকার নেই, দেখে নিন, কালকে আমি শুনবো, ঠিক আছে? ওকে, টুমরো না Okay, so only wait for say. I will also take some instruction from the SHO concern also. কি করবো বলুন, এটা খুব আমার খুব গায়ে লাগছে। একজন ইন্ডিয়ান, যে কোনো ইন্ডিয়ানকে যদি কেউ বলে আপনি বাংলাদেশি এই ওই, সেটা তো একটা প্রবলেম, ঠিক আছে? নিশ্চয়ই পুলিশ সন্দেহ করতে পারে, পুলিশের সন্দেহ করার অধিকার আছে। না, don't say anything against. I'm not against you. Lordship, in this island, many foreigners, Bangladeshis, maybe I have said on that day police has legal right to raise suspicion, but that does not mean that you can torture. Lordship, it doesn't mean that only oral submission, baseless submission, all persons are just see the poor person, but he's Lordship, all persons are blaming police. Why he was caught? But why he has mercilessly beaten up? Dispute court found revision. Lawyer is not taking brief. Some lawyers not. That is different aspect. Will you please go through and come back? I will go through the entire report also. Now there is a medical report. Lordship, I have to go through. The poor person, why he will raise false allegation against the administration? He is a poor person. ও খুব গরিব মানুষ, ও কেন পুরো এর বিরুদ্ধে কেন বলবে বলুন তো, কি ক্ষমতা আছে? Lordship, before a police না doing interrogation, Lordship, just consider his sentiment. He is an Indian. It is possible in the police station. Mercilessly beaten. He is not serious. It is possible. Okay, come back. কাল আসুন, হ্যাঁ কালকে অমিত বাবু। হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা ফ্রাইডে আসেন উনি, আজকে দেখে পরশুদিন বলবেন না, হ্যাঁ পরশুদিন। ঠিক আছে স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। Thank you to go through the file. That file. Yes. File. Go through it. Yes. এটা আপনারাও দেখার দরকার যে একজন ভারতীয় নাগরিককে কেন হবে, তাই যে কাউকে বললেই কার গায়ে লাগবে, ঠিক আছে? ওকে, तो सुमित कर्मकार क्या बोला, सर ये जो डॉक्यूमेंट सबमिट किया कोर्ट के सामने, ये मुझे नहीं मिला, इसीलिए क्या है कि आप एक काम करो, नेक्स्ट डेट फिक्स करो। तो वो क्या बोला, जज क्या बोला, देखो पुलिस का पास राइट है किसी को सस्पिशन में
शक करके किसी को उठा के पूछताछ करने का, लेकिन उसको मारने का, पीटने का, पीट के सब बदमाशी करने का, नंगा करके सब करने का, पैंट खोलने का, ये पुलिस को भी, लेडी पुलिस कांस्टेबल के सामने इसको पैंट खोल दिया, सोचो, ठीक है। वो लोग को विटनेस बना के इसको केस में सजा करवाएंगे, देखो कैसे। जज क्या बोला, ये वो सॉरी सुमित कर्मकार क्या बोला, सर देखो ये आदमी झूठ बोलता है, पुलिस कभी किसी को मारता नहीं, ये बेवकूफ़ आदमी बनाता है, ये अननेसेसरी फेक एलिगेशन लगाता है। तो जज देखो क्या बोला, जज बोला एक गरीब आदमी है, हाँ, उसको 3 टाइम खाने ठीक से नहीं मिलता, वो पुलिस के अगेंस्ट में, एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में फेक केस क्यों करेगा, यही बोलता है। सुप्रीम कोर्ट में भी यही बोलता है। वो अगर सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा ना तो ये पुलिस वाला के ऊपर केस हो जाएगा, पुलिस वाला का सज़ा भी हो जाएगा। जो आदित्य नारायण और जो पुलिस वाला है, ठीक है, वो इंडियन है, तुम उसको मतलब उल्टा पुल्टा करके मार रहे हो। तो ये सब बोल के जज ने क्या किया, ये केस को फ्राइडे को फिक्स कर दिया, कल ही फिक्स किया था। तो सुमित कर्मकार क्या बोला कि मेरे को सर 2 दिन टाइम चाहिए, मैं ये पेपर पर देखने के लिए, तो बोला मेरे को मतलब नेक्स्ट डेट कर दो। देखो अभी इस तरह केसेस में होता है, आप देखना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के एक लेबर को डिग्रीपुर में कोई पुलिस कांस्टेबल मारा था, वो भी आँखी फुला के मीडिया का पास जाके कूदा कूदी करता है, धरना वरना करता है, ये मीडिया वो मीडिया का भागादौड़ी करा, कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट आप देखना कि ये 2020 में लॉकडाउन में पुलिस कितना को गंदा मारा डंडा से, कोई कुछ नहीं करा। देखो जब भी पुलिस मारता है ना, अगर आपको पीटता है, धनाधन मनोज को कॉल करो मेरे को, वो क्या करना, मेडिकल रिपोर्ट बनाना, कहाँ में कंप्लेन करना, कहाँ में सीसीटीवी फुटेज के लिए, सब कंप्लेन करके रखना। आपको सीसीटीवी फुटेज देने का जरूरत नहीं है। इसमें अमित विश्वास को पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज दिया नहीं था, लेकिन वो कंप्लेन करके रखा था, RTI डाल के रखा था। वही प्रूफ है कि सर मैं RTI डाला तो दिया नहीं, सर तो पुलिस छुपा रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, कंप्लेंट फाइल करके रखना, सर मैंने कंप्लेंट फाइल किया था, पुलिस कुछ किया नहीं, मैंने CGM कोर्ट में किया, सेशन कोर्ट में, तो पुलिस कुछ की, इसलिए मैं हाई कोर्ट आया। सोचो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो जज क्या बोलेगा, अरे सुप्रीम कोर्ट तक कोई बंदा फेक केस लेगा तो यहाँ तक आएगा नहीं, कुछ तो करा होगा, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट से बराबर हो जाता है। आपको भरोसा रखना पड़ेगा, थोड़ा जज अच्छा होना, जज बदमाश भी रहता है, लेकिन मेजोरिटी जज जो है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का अच्छा रहता है। उसके बाद देखो ये जो सौदेव का केस है, सौदेव का केस भी मैं कर रहा हूँ, ठीक है। मेरा क्या है कि कल PIL का हियरिंग है, उसके एक रिप्लाई लिखना है, तो मैं एक बेंच में है, जज थोड़ा अच्छा है, दोनों जज, तो इसका मैं कर रहा हूँ। करने के साथ साथ मैं सौदेव का केस भी करूँगा, ठीक है। तो इसी तरह होता है। और पुलिस वाला का सोचो, ये सब पुलिस वाला का ये सब जो मारपीट करा, अब ये लोग अंदर में कैसे कैसे कर रहा होगा, सज़ा हो जाएगा। आप ऐसे मजाक मत दो, वर्दी वाला ड्यूटी है, बदमाशी करेगा, क्योंकि वर्दी वाला जो पुलिस आर्मी होता है, इसको बोलते हैं डिसिप्लिन फोर्स, और डिसिप्लिन फोर्स में जब बदमाशी करोगे तो सज़ा हो जाता है सीधा, ठीक है। तो इसीलिए मनोज पॉल देखो, पूरा अंडमान निकोबार में हम जो कर रहे हैं ना, पूरा अंडमान निकोबार में एक आदमी है कर सकता है का, बताओ आप, सोचो, कमेंट करो और बोलो कि एक आदमी है जो मनोज पॉल जो कर रहा है वो कर सकता है। मेरे को ना पैसा मिला, देखो इसको कैसे लिखना, मैंने मसाला डाला, कैसे कैसे डाल के मैंने पूरा केस को बनाया और यहाँ तक लेकर, और जज का पूरा रिएक्शन सुनो, आपको कितना मज़ा आएगा। जज सुनने का राजी ही नहीं कि फेक है, ये फेक है ही नहीं, क्योंकि जज लोग को पता चल जाता है कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है। अभी क्या सरकारी वकील को तो बोलने का मौका देना, कुछ भी बोले, वो तो बोलेगा ये बेकार है, वो है, ऐसा नहीं होता। जज एक जज को पता रहता है कौन सच बोल रहा है, कौन झूठ बोलता है, क्या लिखा है, ठीक है। अब देखो इसका क्या ऑर्डर पास होता है, परसों मैटर है, परसों ऑर्डर पास हो जाएगा, फिर मैं उसका भी अपडेट दूंगा कि जज ने क्या ऑर्डर पास किया। धन्यवाद।